Hello friends, how are you? Now welcome. Now today topic is pH and buffer. इससे पहले अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम के ये पार्ट से एसिड बेस क्या होता है. According to the Arrhenius concept, the acid that use the H plus ions and the base that use the OH minus ion in the aqueous solutions. अब उसी से रिलेटेड अपना ये जो टॉपिक है पीएच एंड बफर, एक्चुअली ये एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक स्केल है. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड का मतलब होता है जो H प्लस आयन that gives H plus या furnishes the H plus ion in the aqueous solution, and the base is a substance that gives the OH minus according to the Arrhenius. But sometimes some bases like the ammonia, it is not a true base, but it is a base, but according to the Arrhenius it is not a true base because it not having the any OH minus ion. So the Bronsted gives the new concept of the acid and base. The acid is a substance according to the Bronsted that gives the H plus ion, and a base is a substance that take the H plus ion. Now the strength of acid and base can be given by a Sorensen by a given scale known as the pH scale. The pH in a buffer solution. तो सबसे पहले अपन डिस्क्राइब करेंगे कि pH स्केल क्या होती है. pH का मेन मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. P का जो मतलब होता है वो है पावर या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना है सॉल्यूशन के अंदर, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द pH. नाउ इट इज गिवन बाय द P.L. Sorensen in the 1909. According to the Sorensen, the pH of a solution may be defined is, वो क्या होता है कि the negative logarithm of the hydronium ion concentration in a moles per liter, it is known as the pH. हाँ, अगर अपन इसको बेस के लिए निकालेंगे तो इसके लिए वो डेफिनेशन हो जाएगी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन मोल्स पर लीटर. फॉर द बेस, for base that pH, instead of pH we use hydroxyl ion concentration for the base. Negative logarithm of hydronium ion in moles per liter, it is the pH, and negative logarithm of OH minus ion, it is a base. Mathematically that pH is equal to negative logarithm of hydronium ion concentration or a log 1 by hydronium ion concentration. अगर कभी कभी अपन इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus pH. छोटे लेवल के ऊपर स्टार्टिंग में जैसे 10 raised to power minus 3, तो that 3 is the pH. For a pure water, the hydronium is always a constant 1 into 10 raised to power minus 7 moles per liter. बट इसका pH अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसके लॉग के अंदर वैल्यू रखेंगे 1 into 10 raised to power minus 7. Then we solve it. The log 1 plus minus 7 into log 10. The calculated value is the 7. For a pure water, always the pH is 7. अगर अपन कोई एसिडिक लेते हैं, for acidic solution the pH is less than 7, and for the basic the pH is greater than 7. Normal the range, the scale of the pH always from 0 to 14. The complete range of the hydronium and OH minus can be illustrated as below. ये एक बहुत ही शानदार एक स्केल का फॉर्मेट हमने बनाया है जो कि खास पीएच को एक ही बार के अंदर अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसकी पीएच कब ज्यादा होती है और कब कम होती है. ये है एक बीच में है दैट इज वाटर. इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन. ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं. इट इज इक्वल टू द 10 raised to power minus 7. सो द पीएच हमेशा वाटर की क्या रहती है, प्योर वाटर की 7. अब अगर अपन यहां देखें जैसे जैसे 60 से कम होता जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बिकम्स इंक्रीजेस. The highest acidic is the range is 0, 1, 2. Because the hydronium ion concentration is 10 raised to power minus 1, minus 2. Hydronium is increases.
बट इन दिस केस द बेसिक अल्फाबेट आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे जैसे अल्फाबेट की साइज कम हो रही है एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती चली जा रही है। ये अपन अगर बेसिक में देखते हैं तो बी ए एस आई सी, जैसे जैसे ये स्पेलिंग में वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब कि बेसिसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस 12, 13 एंड 14 and the neutral is hydronium is equal to OH minus is equal to 10 to power minus 7। ये इसके अंदर मेन पीएच के बारे में ये मेन चीज है। नाउ अब अपन इसके बेस के ऊपर पीएच एंड पीओएच के ऊपर न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अपन समझते हैं कि फार्मूले कितने अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसका एक अपन समराइज देखते हैं, सम फार्मूला फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो पहला फार्मूला जो है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन, द बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट द एक्टिव मास मोल्स पर लीटर हाइड्रोनियम। pOH इट इज फॉर द बेसिक, बेस का हमेशा pOH निकलता है, नेगेटिव लॉग OH माइनस, हमेशा pH प्लस pOH is equal to 14, hydronium is equal to 1 into 10 to the power minus pH and hydroxyl is equal to 1 into 10 to the power minus pOH। एक एग्जांपल्स अपन देखते हैं। डिटरमाइन द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl एंड 0.001 मोलर NaOH। अगर अपने को ये दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं और इसकी pH अपने को कैलकुलेट करना है तो हाउ वी कैन फाइंड द न्यूमेरिकली, बहुत ही आसान मेथड से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दैट इज द वेरी वेरी सिंपल मेथड टू यूज दिस फार्मूला। सबसे पहले फॉर HCl एक ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एसिड है कि वो बेस है। ये एक अपने को नॉर्मली मालूम होना चाहिए कि अगर एसिड है तो उसकी pH हमेशा 7 से कम आएगी और अगर बेस है तो उसकी pH हमेशा 7 से ज्यादा आएगी। बेस के अंदर हमेशा pH ना निकालते हुए सबसे पहले जो गिवन कंसंट्रेशन रहता है वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है। अपन सबसे पहले देखते हैं HCl। HCl के अंदर जो गिवन है वो है इसका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, वो दे रखा है 0.01 तो इसको अगर अपन इसके साइंटिफिक नोटेशन से चेंज करेंगे तो 1 into 10 to the power minus 2m। अब we use the formula first, pH is equal to negative logarithm of hydronium ion concentration, negative log concentration में 1 into 10 to the power minus 2। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, ये जैसे लॉग का अंडर मल्टीप्लाई होगा, लॉग का सिंपल फार्मूला log m into n and log m to the power n, दो फार्मूले का अपन इसमें इस्तेमाल करेंगे। log m प्लस log n, तो log m में log 1 ये तो 0 हो जाएगा, -2 इसके आगे आएगा और log 10 बराबर हमेशा क्या होता है 1। तो अवर सॉलिड आंसर इज pH इज इक्वल टू 2। नाउ वी कैलकुलेट द NaOH। अब NaOH के लिए डायरेक्ट अपन 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, इसके अंदर जो आता है वो है इसका कंसंट्रेशन OH, बिकॉज NaOH अकॉर्डिंग टू द Arrhenius that gives OH minus concentration। तो OH की वैल्यू given है 1 into 10 to the power minus 3। Now we use the second formula for the base। First we calculate the pOH value। What is pOH for the NaOH? pOH is equal to negative logarithm 1 into 10 to the power minus 3। इसको भी सेम वही लॉग की वैल्यू से अपन सोल्व करेंगे, जो पावर आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, दैट इज 3। आफ्टर सॉल्विंग वही अपन नीचे वाले फार्मूले से कोरिलेट कर सकते हैं। सो द pOH अगर 3 है तो वी नो दैट आवर द थर्ड फार्मूला pH plus pOH is equal to 14। तो what is the pH of NaOH? The 14 minus pOH, that is 14 minus 3। The 11 is the pH of given NaOH। इस तरह से अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली pH के और pOH के न्यूमेरिकल्स अपन इसके फार्मूले के बेस के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। आगे के अपन ने देखा कि pH पूरा कंप्लीट होता है। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। उसी कांस्टेंट pH के ऊपर एक सॉल्यूशन रहता है बफर। बफर का मतलब होता है बैलेंसिंग। बफर का मेन मतलब ही यही होता है कि कई बार ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जिसके अंदर अगर अपन को एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दे तो उसकी pH एज इट इज रहे, उसको कहा जाता है बफर। तो बफर सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या, इसका एक अपन एक शॉर्ट डेफिनेशन अपन आपको बताते हैं।
A buffer solution is the solution which can resist the change in the pH on addition of a small amount of acid or a base. बफर का मतलब ही यही है कि एक ऐसा सॉल्यूशन अपन तैयार करें कि जिसमें अगर अपन कोई एसिड डाल दे या कोई बेस डाल दे तो उसकी पीएच ऐसा के ऐसा ही रहे। जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ये काम में आता है कि ब्लड एक अपना एक ऐसा है कि इट इज द बफर सॉल्यूशन। इसके अंदर अगर अपन व्हाट एवर वी ईट, जो भी अपन खाना खाते हैं, तो कई बार उसकी ब्लड के अंदर कोई H+ आयन ज्यादा हो जाए या हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो जाए, बट ब्लड अपनी पीएच को नहीं छोड़ता है। ब्लड पूरी तरह से बफर सॉल्यूशन तरीके बिहेव करता है। तो यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और ए बेस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ बफर कितने तरह के आते हैं? द स्ट्रॉन्ग एसिड बफर, जिसकी पीएच जनरली 7 से कम रहती है। स्ट्रॉन्ग बेस बफर, जनरली पीएच उसकी 7 से ज्यादा रहती है। जो दो इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन जनरली अपने को याद होने चाहिए वो ये है, वीक एसिड एंड वीक बेस बफर। दोनों के अंदर क्या फर्क है? एक ऐसा सॉल्यूशन अपन तैयार करें जिसके अंदर उसकी पीएच रेंज 4 से 7 होना चाहिए, बट ये कब बनेगा? द वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, वो कहलाता है दैट इज वीक एसिड बफर। एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। जो एसिड है उसी का ही सॉल्ट होना चाहिए। एक आता है वीक बेस बफर, द बफर सॉल्यूशन विद पीएच रेंज 7 to 10। इट इज a solution of weak base and its salt of strong acid, ammonium hydroxide and ammonium chloride। ये है मेन बफर और उसकी टाइप्स। अपन ने अभी देखा बफर सॉल्यूशन, अब उसकी आता है दैट इज पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन क्या होता है? इसको न्यूमेरिकली निकालने के लिए अगर अपने को सॉल्ट या एसिड का कंसंट्रेशन मालूम है तो हेंडरसन एंड हेसेलबर्ग की इक्वेशन की बदौलत अपन इसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहते हैं हेंडरसन एंड हेसेलबर्ग की इक्वेशन? फॉर एसिडिक के लिए pH is equal to pKa। pK is the dissociation constant of acid and log of concentration of salt upon concentration of acid, and for a basic pH pKb plus log of salt upon base। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने बॉडी के अंदर? बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है बफर का? ये है आपके सामने, ये कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की पीएच दे रखी है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस अपने पेट के अंदर, स्टमक के अंदर ये बनता है, जो कि हाईली एसिडिक है। HCl उसके अंदर रहता है, वो एक कांस्टेंट पीएच पे वर्क करता है। यूरिन अपने, ब्लड 7.4, जैसे कि मैंने आगे भी बताया आपको। सलाइवा 6.5 to 7.5 एंड टीयर्स। इंपॉर्टेंस ये है इसका कि हर एक अपन इसमें से कोई भी अगर अपनी बॉडी में कम ज्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप को कांस्टेंट पीएच के ऊपर ये वर्क करते हैं। तो ये थी अपनी पीएच एंड बफर के लिए बनाए। आगे इसके अंदर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो हमारे ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।